men can also claim alimony and Yes, maintain. there are laws safeguarding men in the books of law stating that men have equal rights of alimony. Misconceptions कैसे होते हैं about the laws? औरतें मेरे पास आके पूछती है, मैडम हम रिवेंज ले सकते हैं, हम करोड़ों में एलिमनी क्लेम कर सकते हैं, हम बच्चे यूज कर सकते हैं एलिमनी क्लेम करने के लिए. वुमेन कैन नॉट से कि मुझे इतनी करोड़ चाहिए और मुझे मिलेगा ही. ये मिसकंसेप्शन है. इवन दो बहुत बुरी चल रही है शादी, बहुत अनहैप्पी है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट वो फिर भी रह जाते हैं शादी में. बिकॉज मेरे पास इतने मैटर्स आते हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि हम ज़बरदस्ती का रह रहे हैं, हमें इतना घुटन होता है कि हम खुद का लाइफ ले लें. So today we have with us advocate Riddhi Thakkar, and she has years and years of experience in family, divorce and matrimonial law, and she's here to give us the basic download of हमें क्या क्या पता होना चाहिए यार. And most importantly, we're going to find out what awareness is important as a woman, as a man in this world. And assets and liabilities में क्या क्या देखा जाता है alimony grant करने से पहले, या say for example maintenance देने से पहले. What if a woman has self-earned property of crores and lakhs, and that is sufficient for her to maintain herself? So courts will look into that also. Just because he is a husband, he is entitled to pay to the wife. ऐसा कहीं नहीं लिखा है. So even today आपको register करने की जरूरत नहीं है. Hindu marriages are valid even without registration. तो क्या क्या चीज़ें consider होती है as स्त्रीदान? There are false domestic violence cases against men. How do we protect the men against those false cases? Hi रिद्धि मैम. Hi. आप मुझे बताओ कि आप कितने साल से फैमिली लॉ प्रैक्टिस कर रहे हो? Almost 14 years. एंड आपने ड्यूरिंग दीज 14 years कितने डिवोर्स केसेस हैंडल किए हैं? See, consultations, divorces, matters handling, almost 5,000 matters. सो आई वॉन्ट टू नो कि लीगल पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है, क्या लव मैरिज में ज़्यादा डिवोर्स होते हैं या अरेंज मैरिज में ज़्यादा होते हैं? See, marriage is a marriage. This is what people should understand. Love marriage ho ya arranged marriage ho. In arranged marriages, there is a lot of chances of fraud because people trap you through matrimonial sites as well. I'm not completely relying on matrimonial sites, but there are also marriage bureaus. People give misinformations. There are many people who are already married and they want to hide their status of marriage and want to get remarried. Or there are a lot of different other reasons as well where people want to trap the other party and get married. So these are the mediums of frauds nowadays. It's been coming up. See, this has been happening from times era, but this has been growing more and more now, and the awareness has been growing now. So arranged marriages also things happen. See, when you come to love marriage also, in love marriages also things might happen. People might trap you in the name of emotions and get married. So we lawyers believe that it is equalization, that arranged marriages and love marriages are equal panel and fraud can happen to anyone. अगर कोई ऑलरेडी मैरिड है लीगली तो दूसरी मैरिड तो लीगल नहीं है, तो आई मीन नाउ कमिंग फ्रॉम अ प्लेस लाइक वेयर आई कम फ्रॉम, आई एम एन अवेयर पर्सन, तो मैं अगर शादी करती हूँ किसी से भी तो मैं चाहूँगी कि वो रजिस्टर हो. सो द मिनट हम रजिस्टर करने जाएंगे कि पता तो चल ही जाएगा ना दैट दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड. See, not all people have still that awareness to register their marriage in India. So if you go to your parents, your grandparents, have they registered their marriage? Not all of them. So still there are so many rural areas where people have not registered their marriages. So there's no compulsion to register a marriage. So of course when your marriage is not registered and there are no government records, so how will you trace that? सो इवन टुडे आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है. Hindu marriages are valid even without registration. Okay. Yes, so there is no compulsion. You register your marriage for your own sake, for your passports, for your government recognition. But in Hindus, the marriage registration is not compulsory. Okay. But they still come with all the rights that you get in a Hindu marriage. Yes, and of course the second marriage, whether you have registered, you have not registered, the second marriage is illegal if you are a Hindu, if you are a Parsi, if you are a Christian, or it is under Special Marriage Act. So मुझे एक बात बताओ कि
टॉप 3 मिसकंसेप्शंस क्या हैं अबाउट डिवोर्स लॉज इन इंडिया? जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, क्या उनको मिसकंसेप्शंस कैसे होते हैं अबाउट द लॉज? फर्स्ट मिसकंसेप्शन, औरतें मेरे पास आके पूछती है मैडम हम रिवेंज ले सकते हैं, हम करोड़ों में एलिमनी क्लेम कर सकते हैं, हम बच्चे यूज़ कर सकते हैं एलिमनी क्लेम करने के लिए, डिवोर्स लेने के बाद हम दूसरा शादी करके वापस अच्छे से सेटल हो सकते हैं. सो दोज आर मिसकंसेप्शंस कि एक बार टूटा है आपका कंपलसरी दूसरी बार अच्छा चलने वाला है, ऐसा कहीं नहीं है. तो सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब दूसरी शादी में कूदो उसके पहले. सेकेंड मिसकंसेप्शन इज़ कि बच्चे को आगे रख के तुम एलिमनी कैसे क्लेम कर सकते हो. बच्चा फुटबॉल थोड़ी ना है कि आप बच्चे को यूज़ करोगे. बच्चे का खुद का राइट्स है, खुद का लाइफ है. आप बच्चे को मिस यूज़ नहीं कर सकते हो खुद के एलिमनी के लिए. और औरतें आके बोलती हैं कि करोड़ों में एलिमनी. कोर्ट ऑफ कोर्स सीज द असेट्स लायबिलिटीज एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स. दे हैव बीन न्यू असेट्स एंड लायबिलिटीज फॉरवर्ड इन द कोर्ट, इन द फैमिली कोर्ट, दैट हैज़ टू बी अंडरगॉन. सो जब भी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ देखते हैं जज साहब, तो उसमें पता चलता है किसकी क्या असेट्स है, क्या लायबिलिटीज़ है, उसके ऊपर एलिमनी डिसाइड होता है. विमेन कैन नॉट से कि मुझे इतनी करोड़ चाहिए और मुझे मिलेगा ही. ये मिसकंसेप्शन है. एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में क्या क्या देखा जाता है एलिमनी ग्रांट करने से पहले, या से फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस देने से पहले? See, first thing that the women should not be earning enough money. अगर उसकी अर्निंग हस्बैंड से काफ़ी कम है, मीन सपोज अ हस्बैंड अर्न्स 2 lakhs a month एंड द वाइफ अर्न्स 20,000, 10,000 और वो बच्चे पाल रही है, तो हाउ विल यू एक्सपेक्ट अ वुमेन इन 10-20,000 कि वो घर चलाए, बच्चों को पाले? सो ऑफकोर्स कोर्ट विल सी दैट गैप ऑफ द मेंटेनेंस, द गैप ऑफ द अर्निंग्स. सो उसमें कोर्ट डिसाइड करेगा पहली चीज़ कि मेंटेनेंस कितना दिया जाए. ऑफकोर्स द ऑनरेबल कोर्ट विल सी द बैरियर्स एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स for passing the maintenance, but at least it is 110% a child should be maintained by the father. When you talk about the assets and liabilities, there is also a very important thing which has to be noted, that the property. What if a woman has self-earned property of crores and lakhs, and that is sufficient for her to maintain herself? So courts will look into that also. एंड दिस कैन बी व्हाट इफ ये उसने प्रॉपर्टी शादी से पहले अपने पैसों से बनाई है, शादी से पहले बनाई है, इनहेरिटेंस में आई है, बट कहीं ना कहीं उसको वो मेंटेन कर रही है, एंड शी इज़ अ सिंगल वुमेन, नो चिल्ड्रन. सो ऑफकोर्स शी कैन नॉट ओवरबर्डन फाइनेंशियली टू द हस्बैंड. जस्ट बिकॉज ही इज़ अ हस्बैंड ही इज़ एंटाइटल्ड टू पे टू द वाइफ, ऐसा कहीं नहीं लिखा है. द थिंग इज़ द लॉ सेज इफ शी इज़ अर्निंग इनसफिशिएंट, तो वो प्रॉपर्टी में से भी अगर अर्न कर रही है, अगर वो अर्निंग्स नहीं है, जॉब में से अर्निंग्स नहीं है बट प्रॉपर्टी में से भी अर्निंग्स है, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड. सो सी देयर आर मेनी स्मॉल टाउन्स, रूरल एरियाज जहाँ से मेरे को मैटर्स आते हैं, वहाँ पे औरतें आके बोलती है मैडम हमको बताया ही नहीं जाता असेट्स एंड लायबिलिटीज फाइल करना है. जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस में लिखा है कि असेट्स एंड लायबिलिटीज इज़ अ वेरी बिग लैंडमार्क and it has to be filed, without which no maintenance orders are passed. So honorable judges have been asking for assets and liabilities. कुछ lawyers लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्लाइंट को ये बताना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, और वो assets and liabilities के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, नहीं छुपाने हैं डॉक्यूमेंट्स, तो छुपाना भी एक गुनाह होता है डॉक्यूमेंट्स. सो काफ़ी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए औरतों को. ओके अब मुझे एक बात बता, आपने बोला जैसे फॉर एग्जांपल कि हस्बैंड का 2 लाख सैलरी और वाइफ का 20,000 है. लेट्स स्विच इट, लेट्स से कि हस्बैंड की 2 लाख है, वाइफ की 1 लाख है, तो फिर अब मुझे बताओ इसमें मेंटेनेंस मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा क्या होगा? देन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्लेज रोल. अगर हस्बैंड ने उसको अच्छा, बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल दिया है टू इक्वलाइज हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया है, तो of course she is going to claim the same standard of living which is mentioned in the laws. उसमें फॉर एग्जांपल इफ टुडे आई एम गोइंग टू फाइल पेपर वर्क एंड मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, मैंने वो नहीं दिखाई, एंड माई हस्बैंड से फॉर एग्जांपल डजंट नो इट, So it is perjury, it is contempt of court. बट इज देयर एनी अदर वे फॉर द अदर पार्टी टू फाइंड आउट?
आप उसमें एप्लीकेशन करो प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्स का, आपको पता है आपके हस्बैंड के कितने अर्निंग्स है, असेट्स कितने हैं, तो आप प्रोडक्शन एप्लीकेशन फाइल करो जिसमें आप सामने वाले के डॉक्यूमेंट्स मंगा सकते हो। वो फाइल नहीं करता तो कोर्ट ऑर्डर करेगा। आपको पता है कि वो बैंक के डॉक्यूमेंट्स नहीं फाइल कर रहा है तो आप बैंक को समन्स इश्यू करवाओ ऑनरेबल कोर्ट से, आप ऑर्डर्स निकलवा के, सो द बैंक विल कम एंड गिव द डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर स्पाउस। सो दीज आर दी वेज टू फाइंड आउट। बट आपको पता अपने स्पाउस का इनकम सबसे पहली चीज़ पता होनी ही चाहिए। दैट इज़ अ सिक्योरिटी which you give to each other, and of course husband and wife has to declare and discuss their incomes, their assets, not for claiming from each other but for those bad rainy days and for also the securities. Supposedly if one spouse dies and उसके दूसरे स्पाउस को पता ही नहीं है अपनी वाइफ या हस्बैंड का कुछ इनकम, असेट्स, लायबिलिटीज, वो बच्चे कैसे पालेगी? सो अगर उनको पता है कि मेरे हस्बैंड का ये प्रॉपर्टी में नाम है तो अपना हक जमा सकती है बच्चों के लिए। पता है कि ये बैंक अकाउंट में इतना इतना वो छोड़ के गए, वो बच्चे पाल सकती है उसमें से। सो नोइंग योर स्पाउस इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंड योर चिल्ड्रंस सिक्योरिटी। अपार्ट फ्रॉम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज और क्या फैक्टर्स प्ले इन करते हैं इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर्स या एलिमनी के लिए? सो व्हाट एल्स डू द कोर्ट्स लुक एट अपार्ट फ्रॉम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज? Stridhan is very important, which people claim. So when you look into the assets and liabilities, apart from that, people, along with maintenance, they also file the Stridhan part. So these are also claims, but it has to be mentioned in the assets and liabilities. So in today's era of practice, assets and liabilities, when you enter in the court for asking for alimony, for maintenance, yes, Stridhan, everything has to be declared on your assets and liabilities, and based on assets and liabilities the orders are being passed. तो क्या क्या चीज़ें कंसिडर होती है स्त्रीधन? Whatever is given to a woman in marriage, whether a piece of land, gold, silver, furniture, appliances, all these amount to a stridhan. Okay. And they belong to her. It is her property. And what if she's been given this by, say, हस्बैंड के रिलेटिव्स या हस्बैंड के फ्रेंड्स या किसी ने दिया है तो? That is also stridhan. That is a gift to marriage. Any gift to marriage was a stridhan. Okay. And in the case of a divorce, अगर वो प्रॉपर्टी, अब वो प्रॉपर्टी या फिर वो ज्वेलरी या जो भी गिफ्ट्स हैं वो फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड की फैमिली के पास रह गए हैं, विच इज़ आई थिंक अ लॉट ऑफ, दिस इज़ अ वेरी कॉमन ट्रेंड कि वो इन लॉज को दे देते हैं कि आप संभाल के रख लो सेफ कीपिंग के लिए। तो इस सिचुएशन में व्हाट इज़ द वे टू गेट इट बैक? You can file case before the Honorable Magistrate Court under the Protection of Women from Domestic Violence Act. बट हाउ डू यू प्रूव कि आपको इतना सर्टन स्त्रीधन दिया गया आपके है? पास बिल्स होने चाहिए, आपके पास फ़ोटोज़ होने चाहिए, आपको शादी में पहनाया जा रहा है, आप एक्सचेंज कर रहे हो ज्वेलरी, तो वो सारे फ़ोटोज़, बिल्स। अब ऐसा नहीं बोल सकते 1998 में ख़रीदा हुआ मेरी मम्मी का बिल है और वो मेरा स्त्रीधन है। देन यू हैव टू प्रोड्यूस विथ ऑल रिकॉर्ड्स के ये मुझे इनहेरिटेंस में, वारिसदारी में ये मुझे स्त्रीधन मेरी मम्मी से दिया गया है। बट डोंट यू थिंक कहीं ना कहीं, चलो मैंने बिल्स दे दिए, मैंने फ़ोटोज़ दे दिए, बट वो लोग बोल रहे हैं हमारे पास नहीं है, मैं बोल रही हूँ नहीं इनके पास है। That is where that dowry thing plays under the conception. ये सारी चीज़ें अगर ये डिमांड की गई है कि ससुराल से आया, लड़की के पेरेंट्स के पास से शादी के लिए डील की गई है, लड़के वालों से डिमांड किया गया है कि ये फलाना फलाना चीज़ें चाहिए, लैंड चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, सिल्वर गोल्ड सब चाहिए, शादी में कैश चाहिए, ये सारी चीज़ें लड़की वाले अपने सुखी बेटी की सुखी लाइफ के लिए दे, तो ये ऑफकोर्स ये डाउरी में आ गया। सो ऑफकोर्स यू हैव राइट to do that FIR before the nearby in the nearby police station and then do the पंचनामा। तो वो दे नहीं रहे हैं तो सर्च करते हैं, सर्च वारंट निकलता है, पंचनामा निकलता है, तो घर में जाके सर्च होता है। बट चलो फॉर एग्जाम्पल डाउरी का केस नहीं है, देव नॉट आस्क्ड, अब मुझे मेरी ज्वेलरी वापस चाहिए, बट ये तो ही सेड शी सेड हो गया ना इस सिचुएशन में। So you have to prove beyond a doubt in the court that But how do you prove something which is a he said, she said? it is as per Indian Evidence Act. It is not BNSS.
Okay. So So if you're forced to leave the house, of course you're not expecting that एक औरत मार खा रही है और घर से बाहर ड्रैग हो रही है वो रिकॉर्डिंग करे, बट आप जब भी निकल रहे हो, आपको निकाला गया है ऑफ कोर्स घर से, तो आप पहली चीज़ करोगे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट. यू आर इन्फॉर्मिंग द पुलिस दैट मेरा सारा सामान, स्त्रीधन, सारी चीज़ें जब्त की गई हैं, सारी चीज़ें रखी गई है और मुझे सिर्फ पहने हुए कपड़े में बाहर निकाला गया है. बट नेवरदीलेस हर औरत ऐसे नहीं निकलती है. कितनी सारी औरतें खुद के विलिंगनेस से सारा सामान पैक करके निकलती हैं, फिर कोर्ट में झूठा दावा डालती हैं कि मुझे ये सारा स्त्रीधन दिया जाए. इसके लिए कोर्ट इज़ न्यूट्रल. कोर्ट दोनों बाजू से सुनेगा कि एक आदमी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए कि ऑलरेडी उसने बाइज्जत अपना वाइफ का स्त्रीधन खुद ने चढ़ाया हुआ दे दिया और ये वापस मांग रही है. ओके, माई पर्सनल ओपिनियन इज़ कि लव मैरिजेस में इट्स ईजियर टू वर्क आउट क्योंकि आपकी फैमिली से इतना प्रेशर नहीं आ रहा है. बट अरेंज मैरिजेस में बहुत होता है कि आपकी फैमिली बोल रही है अलग मत हो, मेक इट वर्क, ट्राई करो. आपने ये देखा है कि आपके केसेस में होता है, और अगर होता है तो फैमिलीज़ का क्या ओपिनियन है इन चीज़ों पर, क्यों इतना प्रेशराइज करता है कपल्स को? Divorce can happen to any person at any age. I have clients who are in 70s and who are 18, 19 and 20 years old. That social pressure, whether it be a love marriage or an arranged marriage, that social pressure is going to build. आपका love marriage 20 years, 25 years चला है, तो ऑफकोर्स उसके बाद कौन से पेरेंट्स चाहेंगे अपने बेटी का घर तोड़ने का, या कौन से पेरेंट्स चाहेंगे अपने बेटे का घर तोड़ने का. सो ऑफकोर्स सारे मैरिजेस में मोस्ट ऑफ 80% पेरेंट्स विल कम टुगेदर टू सेव द मैरिज. कोई माँ बाप अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो अपने बच्चों का घर नहीं तोड़ेंगे. तो सोसाइटल प्रेशर की वजह से कुछ कुछ घर बच भी जाते हैं कि छोटी मोटी चीज़ें की वजह से कोर्ट नहीं जाना चाहिए. डू यू थिंक अभी भी काफ़ी हद तक लोगों में एक स्टिग्मा है डिवोर्स का, सोसाइटल प्रेशर का, जिसकी वजह से इवन दो बहुत बुरी चल रही है शादी, बहुत अनहैप्पी है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट वो फिर भी रह जाते हैं शादी में? गुड यू ब्रॉट दिस पॉइंट, बिकॉज मेरे पास इतने मैटर्स आते हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि हम ज़बरदस्ती का रह रहे हैं, हमें इतना घुटन होता है कि हम खुद का लाइफ ले लें. ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पे पहले काउंसलिंग करना पड़ता है. फर्स्ट यू हैव टू सेव योर सेल्फ, बट देन दे गो इन टू डिप्रेशन, दे टेक थेरेपीज़. तो वो बहुत ज़्यादा, और फिर बच्चों को आता है, बच्चे देखते हैं माँ बाप को लड़ते हुए. सो ये बच्चों को दूरदृश्य आप बताओ, इससे अच्छा आप कोई दृश्य ही मत बताओ. डिवोर्स हस्बैंड एंड वाइफ ले रहे हैं, बच्चे थोड़ी ना डिवोर्स ले रहे हैं. आप माँ बाप तो लास्ट ब्रेथ तक रहोगे. तो आपको ये बच्चों का भी सोचना है, वेदर इट इज़ मेन और विमेन, उसमें कोई जेंडर है ही नहीं. और क्या आपने अपने एक्सपीरियंस में ये भी देखा है कि वुमेन यूजुअली अवॉइड फाइलिंग फॉर डिवोर्स बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ जजमेंट, या यू नो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, या कहीं ना कहीं लूजिंग द कस्टडी ऑफ देयर चाइल्ड में भी? See, there is nothing like that a woman will be feared. In fact, men would come in a fear कि हमारी बदनामी हो जाएगी, हमारी फैमिली की बदनामी हो जाएगी, मुझे कस्टडी नहीं मिलेगा. क्योंकि ज़्यादातर आदमी लोगों को छोटे बच्चों का कस्टडी नहीं मिलता, विजिटेशन होता. सो ये डर डिवोर्स का आदमी लोगों को आजकल ज़्यादा है. एंड women, of course, there is so many laws supporting women that they would go walking the court कि हमको फाइल करना है, हमारे पास तो राइट्स हैं. Men would take a seat back कि हमारे पास तो लॉज है ही नहीं. There plays a role of Honorable Supreme Court and Honorable High Courts of India, which would have judgments for safeguarding the men's rights in divorces, in child custody, and the maintenance also. Men can also claim alimony. Yes, there are laws safeguarding men in the books of law, that stating that men have equal rights of alimony. Thank you so much. I'll interrupt, subject to personal laws. But no, thank you so much for saying this, because I think currently ना इंटरनेट पे इतना शोर मच रहा है कि अरे women file divorces for alimony, and I keep seeing these comments and these trolls and this all of this, and मैं हमेशा ये बैठ के सोच रही होती हूँ कि यार men can also claim alimony. एक चीज़ है, औरतों के लिए एलिमनी क्लेम करने के लिए कोर्ट फीस माफ़ है. आदमी लोग एलिमनी क्लेम करेंगे, मेंटेनेंस क्लेम करेंगे, उसके ऊपर से रेडी रेकनर के हिसाब से हमको देख के बताना पड़ता है कितना कोर्ट फीस जाता है. In line with the same question, I will also ask you this कि you know हमने काफ़ी ऐसे over the years ऐसे judgment देखे हैं. It is cruelty if the wife is not wearing मंगलसूत्र and सिंदूर.
if you see Hindu Marriage Act, it is the basic condition of a marriage कि आप 7 फेरे लो, आप सिंदूर धारणा करो, आप मंगलसूत्र मंगल धारणा करो. ये एक बेसिक नॉर्म्स है. तो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स, ये जो नॉर्म्स जो फ्रेम किए हैं लॉज में, उसके ऊपर ही जजमेंट्स देते हैं, खुद के ओपिनियंस नहीं देते हैं. Special Marriage Act versus Hindu Marriage Act, because I feel like there is so much that लोगों को नहीं पता है. लोगों को मिसकंसेप्शन है. तो उन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है इन द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग द मैरिज एज वेल एज द पेपर वर्क एज वेल एज द रिचुअल्स. सी स्पेशल मैरिज एक्ट मतलब 2 डिफरेंट रिलीजन्स या द सेम रिलीजन बिना फेरे का रजिस्टर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्री में शादी करना चाहता है, साइन करके 1 महीने का प्रोसीजर फॉलो करके विटनेस 1 महीने का नोटिस देना. 1 महीने का नोटिस देकर फेरे लेना कंपलसरी नहीं है उसमें स्पेशल मैरिज एक्ट में. और स्पेशल मैरिज एक्ट में फेरे नहीं आते हैं. फेरे हिंदू मैरिज एक्ट में आते हैं, जहाँ पे आप शादी करो फेरे लेकर एंड जाके फिर बीएमसी वार्ड में अपना शादी रजिस्टर करो. जब ये मैं क्वेश्चन देख रही थी मैंने बोला यार ये क्वेश्चन तो मतलब मेक्स मोर सेंस, क्योंकि ये तो सबको पता होगा. एंड यू नो आई वाज लाइक वेट लेट मी आस्क, मे बी आई एम बीइंग जजमेंटल अबाउट इट. तो मैंने अपनी टीम के 2-3 लोगों को पूछा एंड दे लाइक दे डिडंट हैव एन आंसर. आर प्रीनप एग्रीमेंट्स वैलिड इन इंडिया? See, 2 things I would like to highlight. First thing, prenuptial is not valid. Why it is not valid and why there should be no validity to it? 2 अलग conception है. It is not valid because India में शादी sacred माना जाता है. As per Contract Act, any agreement to marriage in India is void ab initio. मतलब वो agreement ख़त्म हो जाएगा साइन करते ही. That is void ab initio. सो इंडिया में शादी को पावन माना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है. I also want to know that I think there are a lot of people don't know this कि आप अगर डिवोर्स फाइल नहीं करना चाहते हो and you are in a marriage that is violent, then you can actually file for domestic and you know under the Protection of Women Against Domestic Violence Act. You can file for protection, but उसमें क्या क्या मिलता है in that? Why should you file for it is what I want you to tell. प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसको कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसके अंतर्गत वो अपना शेयर्ड हाउस होल्ड मांग सकती है. मतलब हस्बैंड के साथ, इन लॉज के साथ में रहने का परमिशन मांग सकती है, या फिर अलग अकोमोडेशन मांग सकती है अगर उसको फेंका गया हो, उसके बच्चे हैं. आप मेंटेनेंस मांग सकते हो, उसमें अपना स्त्री धन भी मांग सकते हैं. आपको चोटें पहुंचाई है इन लॉज ने तो आप कंपेंसेशन भी मांग सकते हैं. Does DV Act also provide protection to men against domestic violence? Very difficult. We have been trying to neutralize it. There have been few cases where there have been extreme abuse and a few men have got that protection and all, but it's very difficult to neutralize it. इसके अलावा मुझे ये भी बताओ कि अब जैसे we are talking about domestic violence, what all comes under domestic violence? सिर्फ मारपीट. कुछ लोग ऐसे भी पूछने आते हैं क्लाइंट्स लोग, मैडम मारा तो नहीं है तो डोमेस्टिक वायलेंस कैसे फाइल किए? तो मेंटल अब्यूज़ इज़ ऑल्सो एन अब्यूज़. आपको कोई गाली देता है और आपको मेंटली आपको प्रताड़ना होती है, आपको मेंटली अब्यूज़ लगता है, आपको नहीं ठीक लगता, तो ऑफकोर्स आप फाइल कर सकते हो कंप्लेंट कि ये मेंटल टॉर्चर है. फाइनेंशियल वायलेंस बहुत ज़्यादा दबा हुआ क्लॉज है, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक हस्बैंड ने, इन लॉज ने आपके पास से सारी चीज़ें, सारे पैसे आपके ख़त्म कर दिए, सारी चीज़ें ले ली आपसे और फिर आपको वो चीज़ से अब्यूज़ कर रहे हैं सिर्फ पैसे निकालने के लिए, तो वो आपको फाइनेंशियल अब्यूज़ होगा ही ना. हमने अपनी बहनों के लिए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, बट आई थिंक हमने हमारे ब्रोज के लिए भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, विच इज़ दैट उनके पास भी मेंटेनेंस और एलिमनी राइट्स हैं. सो इतना हल्ला ना करें. सब्जेक्ट टू पेइंग कोर्ट फीस. या सब्जेक्ट टू पेइंग कोर्ट फीस, बट इतना हल्ला ना करें. बट मुझे एक और चीज़ पूछनी है कि सो दिस हैपन्स अ लॉट, देयर आर लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे यू नो देयर आर फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस केसेस अगेंस्ट मैन. हाउ डू वी प्रोटेक्ट द मैन अगेंस्ट दोज फॉल्स केसेस? First thing, when a woman has to prove, she has to prove with material evidence that she has been abused, which amounts to domestic violence.
So the burden of proof lies on the person who is filing the complaint. So अगर एक औरत जाके सिर्फ बदले के भावना में कि सारे फैमिली को ड्रैग करना है, कोर्ट में फाइल करेंगे, तो फिर उस कोर्ट को भी पता है ना, लैक ऑफ एविडेंस है, तो कोर्ट को भी पता है कि एक आदमी बेचारा इनोसेंट और उसका फैमिली पीस रहा है सिर्फ पैसे के लिए. सो देर हैव बीन सो मेनी विमेन जो सिर्फ एलिमनी के लिए दे कम अप विद फॉल्स केसेस एंड से कि अब मेरे साथ टॉर्चर हुआ. अब टॉर्चर का प्रूफ तो दिखाओ. एंड कुछ लोग तो गलत डिजिटल यूज़ करके भी प्रूफ जमा करता है, बट देन कोर्ट गोज फॉर फॉरेंसिक. सो वहाँ पे आदमी और उसके घर वालों को मिलता है न्याय. ऑल्दो औरत जाती है झूठे केस फाइल करके न्याय के लिए, बट वहाँ पे मिलता है आदमी को न्याय. So, thank you so very much for joining us, Riddhi ma'am. And this has been a great informative chat. So, अगर आप लोगों के पास बहुत सारे questions हैं, concerns हैं, आपको चाहिए हम कुछ certain topics discuss करें, so drop us your questions and concerns in our DMs, in the comments. Let us know what more do you want to know and how this was for you. So everyone, I would like to bring to your notice here that there is one more lawyer present over here, Janvi Manchanda. She has been so far interviewing all celebs. Is not just Janvi Manchanda, she's advocate Janvi Manchanda. She has done law herself. So she has quite a lot of knowledge, and maybe Janvi, that brings you here, interests you to interview me. Yeah, I think it is that. I think so much of it was कि मुझे भी पता है, but I think लोगों को भी पता होना चाहिए.